I'm yours. अच्छा अब हुआ शायद. Okay. So now we will read about the vacuoles. So please give me one answer of my one question. Do vacuoles are present both in plant or animal cells, or only in animal cells, or only in plant cells? They are Vacuoles. present Both in plant both and animal plant and cells. animal cell, Both but they are are In both bigger in plant cell and plant animal cells. cell. in both cells. Yes, 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 But yes. they are bigger in All of plant you are cells. absolutely correct. Present in both plant and animal cells. But position is different. In the plant cell, in the center of the cell, there is a large vacuole. Is it? There is only one vacuum. And which will occupy almost all the area of the cell. 70 to 80%. Yes, very good. 90% But in human, occupied the कर लेते size is हैं very and small they, and they are multiple in numbers. yes, and they push the nucleus towards the periphery in case of plant cells. Initially, when these vacuoles are being formed, in case of plant cells also, they are also small in size. But later on, they fuse together to form a huge vacuole that occupies the middle position of a cell. बीच का पूरा पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है. And vacuoles are believed to be formed by the expansion of the ER. Vacuoles are believed to be formed by the expansion and pinching of your ER, that is your endoplasmic reticulum. So vacuoles का origin कहाँ से होता है? If anyone asks you from where this vacuoles comes, इसका origin क्या है? तो they usually originate from the ER. ER से originate होता है by the expansion. ठीक है? By expansion. Expansion होता है और you may say pinching of the ER. By expansion or pinching of. Pinching of ER. ठीक है? Now, like other cell organelles, and in case of plant cell, this vacuole is also being surrounded by a membrane known as tonoplast. Tonoplast. Yes. Like other cell organelles, your vacuole is also of 4 different types. हमारा vacuole भी 4 different types का होता है. I will write one by one. First is your sap vacuole. Second is your contractile vacuole. Third is your food vacuole. And the fourth one is your gas vacuole. So these are the 4 different types of vacuoles which are usually found in both plants and animals. ये 4 different types के vacuoles हमें दिखते हैं. But इसमें से most common जो है वो तुम्हारा sap vacuole है. Sap vacuole basically क्या होता है? They are fluid filled vacuoles. They are fluid filled small vesicles. Yes, yes, Sanjana, you are absolutely correct. Tonoplast is thinner than, okay, आप पूछ रहे हो? No. Tonoplast is thinner than the plasma membrane, okay? This tonoplast, it's thinner than the plasma membrane. So we are talking about the sap vacuoles. So what is this sap vacuole? Sap vacuole consists of a number of fluid-filled vacuoles which are separated from the cytoplasm, with the help of a tonoplast. तो
बेसिकली जो हमारे प्लांट में वैक्यूल्स होता है दैट इज योर सैप वैक्यूल, एंड सैप इज नथिंग बट द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द वेसिकल्स, बिकॉज एज आई टोल्ड कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल वेसिकल्स जो फ्यूज करते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स. तो व्हाट आर द वेरियस फ्लूइड्स दैट आर प्रेजेंट इन द सैप? तो सैप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स. वहां पे आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होता है, etc. Many things are there in the sap. So why they enter the sap? Why these components they enter the vacuole? Why this sap enter the vacuole? So actually they enter the vacuole against the concentration gradient, not with the concentration gradient. जैसे from higher to lower concentration नहीं जा रहा है, from lower to higher concentration जा रहा है, and because of that only the sap is in higher concentration. Sap का concentration higher होता है, they have higher concentration, and these substances move inside the sap vacuole because of against the concentration gradient. The process against the concentration gradient. ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव करते हैं हमारे वैक्यूल के, दैट इज द सैप वैक्यूल विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ प्लांट सेल, जो कि 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई कर लेता है. अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स आल्सो, and these water soluble pigments which are present in the sap is responsible for providing different colors to the flowers, either the roses, dahlia, and many more. Violet color, red color, yellow color, these are being produced, these are being provided with the help of the water soluble pigments that are present inside the sap vacuole of a plant cell. Clear? कलर्स कहाँ से आते हैं फ्लावर्स के पास, ठीक है? तो इट्स बिकॉज ऑफ द, सो इसके पास आयंस है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, एज वेल एज वाटर soluble pigments. And the name of the, please write little bigger. Little bigger, yes, I also think क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है तो इट्स द, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से हटा देती हूँ, ये मैं फिर से बता देती हूँ आपको. सो योर आयंस, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, वाटर soluble pigments, that is your anthocyanin. Anthocyanin, and anthocyanins is basically responsible for providing the red, blue, and the purple color. Anthocyanin is responsible for red, blue और purple color, and anthocyanin yellow color के लिए होता है. Anthocyanin. So these two pigments are also present in the sap. These two pigments are also present in the saps. ठीक है? NTH होना चाहिए था. Ma'am, will you please dictate the spellings of the two मैं pigments? फिर से लिखूं? Actually, the other part is not visible. Okay, थोड़ा सा clear और अच्छे से लिख देती हूँ so that you can write. And please write with yellow chalk. Thank you, ma'am. Hello, is visible clearly? Okay, let me take my Yes. chalk. Just a minute, बच्चा. Where is my yellow chalk? Okay, I got a small yellow chalk. So the name of the pigment is your antho, A-N-T-H-O, anthocyanin, C-Y-A-N-I-N. Is it visible? Anthocyanin. ठीक है? And it's responsible Yes, for ma'am. providing red and blue colors. And the other water soluble pigment that is present in the sap vacuole is your anthoxanthins. Anthocyanins. ठीक है?
THOXANTHINS, anthoxanthins. Anthoxanthins. It's basically for the yellow color. So these two water soluble pigments are also present in your sap vacuole. This sap vacuole is also responsible for providing a definite shape to the plant. एक shape, turgidity provide करता है. Turgidity, a definite shape provide करता है, क्योंकि इसके अंदर तो substances enter करते जा रहे हैं, बहुत सारे substances enter करते हैं, enter करते इसका size बहुत ज़्यादा. तो cell enlargement में भी ये responsible होता है, as well as the turgidity. जैसे ही water enter करता है, तो turgor pressure, water gives the turgor pressure, and in response to that turgor pressure, जो ये wall है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, वो भी एक प्रेशर लगाता है, ताकि दोनों प्रेशर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सके और सेल जो है वो बर्स्ट नहीं हो. So because of this sap vacuole also provides a definite shape to the plant. It's responsible for cell enlargement as well as, and in order to maintain the proper osmotic pressure or the proper osmotic balance is also being maintained by the sap vacuole. ओके, तो ये मैं रब कर दूं, ये 4 होते हैं, ये मैंने बताया, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द सैप वैक्यूल्स ओनली. और आज हो भी नहीं पाएगा, तो मैं इसको रब करती हूँ और सैप वैक्यूल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है? ओके मैम. So it consists of the various things. Apart from these, your sap vacuole is also responsible for maintaining osmotic balance. Maintaining osmotic balance of the cell. That means कि Ma'am, will you please? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा. वाटर एंटर ही नहीं करते जाएगा, वाटर के साथ बहुत सारे आयन से ये सब अंदर आ रहे हैं वैक्यूल्स में, तो एक उसके प्रेशर को मेंटेन करना, नहीं तो वैक्यूल्स 90% से भी ज्यादा और बड़ा होते जाएगा और पूरे सेल के एरिया को कवर करके बर्स्ट भी हो सकता है. तो एक्चुअली इसको मेंटेन कौन करता है? इस ऑस्मोटिक बैलेंस इज नथिंग बट द बैलेंस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर. जब भी हम प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, वहां हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. ठीक है? तो ऑस्मोटिक बैलेंस अभी सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए मैं बता देती हूँ. ऑस्मोटिक बैलेंस इज बेसिकली, ऑस्मोसिस इज बेसिकली द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय वाटर. जो वाटर प्रेशर प्रोड्यूस करे, क्योंकि ऑस्मोसिस से वाटर ही अंदर जा रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय वाटर. तो बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस को भी कंट्रोल करता है हमारा सैप वैक्यूम, as well as it also helps in cell enlargement. Cell enlargement. Cell enlargement में भी हेल्प करता है. तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो सैप वैक्यूल्स के लिए हमें पता है कि सैप वैक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, as well as it consists of a number of substances and these substances enter the vacuole against the concentration gradient. osmotic balance को मेंटेन करता है, सेल के एनलार्जमेंट में हेल्प करता है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स. अगर आपके बुकलेट में कुछ मेंशन्ड है और रह गया है हमारा, तो लेट्स सी सैप वैक्यूल के बारे में हमारे बुकलेट में क्या लिखा है. इट कंटेन सैप और वाटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सैप वैक्यूल नाम ही इसलिए बिकॉज ऑफ द सैप, एंड सैप इज नथिंग बट इट्स अ वाटर फिल्ड फ्लूइड. वाटर के साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं. In plants, single large central vacuole is present, where in animals several small vacuoles are present. Sap is non-living content of cell. Sap जो है वो कैसे है? Ions, minerals, amino acids, proteins है, तो ये कैसा होगा? Non-living component होगा? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. तो sap is Yes, a non-living component. और सैप में बहुत सारी चीजें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, रेजिन्स होता है, गम्स होता है. सैप ऑल्सो मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है. ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? ये जब भी हमने सोडियम पोटेशियम, मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल दिया था, कहाँ पे दिया था याद है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन.
Lysosomes. यस, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में दिया था मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथ गिविंग सम एनर्जी। तो यहाँ पर भी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही काम हो रहा है। सो हियर ऑल्सो यू नीड सम प्रेशर, दैट इज एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। पिगमेंट्स के नाम मैंने आपको बता दिए, ये दोनों वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं सैप वैक्यूल में। आफ्टर दिस सैप वैक्यूल एक छोटा सा वैक्यूल कर लेते हैं जो बहुत सिंपल है, जिसके बारे में आज ही हमने पढ़ा है, दैट इज अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो फूड वैक्यूल्स जो है वो किस में प्रेजेंट है? हमने अमीबा का एग्जांपल लिया। अमीबा क्या है? इट्स अ प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, इट्स अ यूनिसेलुलर तो है बच्चा, यूनिसेलुलर मैंने मान लिया, बट वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है, वो प्रोटिस्ट के अंदर आता है क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और वो प्रोटोजोआ है, तो हम उसको प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। अभी मत बोलो क्योंकि मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आप बोल सकते हो प्रोटोजोआ या फिर प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट बोलना है तो बोल दो, या फिर लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स में भी होता है। एंड दैट फूड वैक्यूल इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द साइटोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो हम रिलीज करते हैं साइटोप्लाज्म में इन ऑर्डर टू बी यूज्ड बाय द अदर न्यू सेल्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड। गैस वैक्यूल जो है वो हमने जब भी प्रोकैरियोट्स पढ़ा था बच्चा, तब पढ़ा था। किसको किसको याद है कि गैस वैक्यूल में जो प्रोकैरियोट्स थे वहां पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते हैं, बट दे हैव गैस वैक्यूल्स। यस, 2-3 हाथे रेज हो रही है। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, हमने पढ़ा था। एंड दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर बट आर परमिएबल टू गैसेस। गैसेस से परमिएबल होते हैं एंड दे कंसिस्ट ऑफ एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक साइज का वेसिकल होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैस ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस गैस वैक्यूल? को हम एयर वैक्यूल्स भी बोलते हैं। एंड द रोल ऑफ दिस गैस वैक्यूल इज टू प्रोवाइड बायंसी। इज इट सो? याद आया? यस प्रसन्न दीक्षित, इट्स फॉर द बायंसी और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता था, हार्मफुल रेडिएशन से। याद आ रही है चीजें? पढ़ा था प्रोकैरियोट्स? यस yes, तो basically this gas vacuole or the gas vacuole, it consists of a small vesicle, एक छोटा सा प्रोटीन का मेम्ब्रेन से सराउंडेड वेसिकल होता है जिसके यहाँ छोटे छोटे गैस के बबल्स होते हैं। एंड दिस गैस वैक्यूल्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द बायंसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन एज वेल एज दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन। नाउ 3 तो हो गए, हमने पढ़ लिया सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। क्योंकि हमने फूड वैक्यूल भी पहले पढ़ा है, हमने गैस वैक्यूल भी पहले पढ़ा है। आपको ये याद रखना है कि गैस वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है। तो गैस वैक्यूल इज इन योर प्रोकैरियोट्स। हमने पढ़ा है कि गैस वैक्यूल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, और फूड वैक्यूल्स के लिए मैंने बताया लोअर एनिमल्स। आप याद रखना क्योंकि अमीबा के लिए हम बोल सकते हैं, आपको जो अभी पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बट वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, इट्स अ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आप लिख सकते हो, लोअर एनिमल्स लिख सकते हो। नाउ कम्स द फोर्थ वन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हम ह्यूमन बींग्स में बोल सकते हो कि अंदर है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो क्या कंट्रोल करता है, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जो काम हमारा किडनी करता है, इज इट एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन? यस। तो वो सारी चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करते हैं। एंड बेसिकली दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स are present in the organisms which are basically found in fresh water. तो जो भी फ्रेश वाटर में एल्गीज आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर एल्गी मिलेगा या फिर सम प्रोटिस्टा मिलेगा जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, वहां हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने के लिए मिलता है। एंड दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर स्पेशली एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग द ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज दिस ऑस्मो रेगुलेशन? आई एम एक्सप्लेनिंग। फ्रेश वाटर में है तो फ्रेश वाटर दे हैव अ टेंडेंसी टू एंटर द लिविंग सेल, इज इट?
तो वो लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं और एंटर 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 करते जाए, बहुत सारा पानी अंदर आ रहा है तो क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो जितना पानी वो ले सकता था उसने ले लिया, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेट कर रहा है कि अब मुझे नहीं चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर रिलीज कर रहा है। तो दिस इज बीइंग परफॉर्म बाय अनदर वैक्यूल, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एक्स्ट्रा वाटर एंटर कर रहा है, और द ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली फाउंड इन फ्रेश वाटर, दैट इज योर algae, some of the algae and some of the protists, there we have contractile vacuoles in order to perform the function of osmoregulation and excretion. अगर वो एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट भी कर रहा है तो आप एक्सक्रीशन भी बोल सकते हो। तो these are the 4 different type of vacuoles। और अभी एक समरी कर लेते हैं। सैप वैक्यूल आपको सबको पता है, जो ये प्लांट्स में हमें दिख रहा है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड फिल्ड कंटेंट होता है, एंड ए नंबर ऑफ मिनरल्स, आयंस, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, एंड इट्स अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये जो सैप है, सैप नॉन लिविंग है। इसके पास वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी हैं, दैट इज योर एंथोसायनिन एंड एंथोजेंथिन। Food vacuole we all know, gas vacuoles, they are present only in prokaryotes and are responsible for providing the buoyancy. यहाँ पर क्या होता है, they are impermeable to water but they have a small vesicle in which a large number of air bubbles are present. And what are about the contractile vacuoles? Contractile vacuoles are found in freshwater algae and some protista, and they are responsible for maintaining osmoregulation and excretion. फंक्शन क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल का? ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये दोनों काम हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस को ये भी बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वाटर जो एंटर कर रहा है तो एक्स्ट्रा वाटर को ये थ्रो करता है। So this is the role of the contractile vacuoles, and these are the 4 different type of vacuoles that we have learned today. Let me see, एक दो questions आए हैं। Means osmoregulation is performed by both sap and contractile vacuoles. Yes, you can say, क्योंकि यहाँ पर हमारा सैप वैक्यूल भी है, वो भी ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो भी करता है हमारा, क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन। बट वो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है वो सिर्फ फ्यू ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। एल्गी करता है, फ्यू प्रोटिस्टा करता है व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। बट ये जो प्लांट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी में ही रहे, फ्रेश वाटर में ही रहे, बट फिर भी ये अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को, क्योंकि ये जो सैप है इट्स ऑल्सो अ फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस, ठीक है? फ्लूइड फिल्ड। हमने 2 वर्ड यूज किया है, इसके लिए मैंने यूज किया ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आएगा तो फिर ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? तो फिर जगह ही नहीं मिलेंगे और सेल ऑर्गेनल्स को। बट जब मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल बोला तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर जो अब वो बेयर नहीं कर सकता है वो भी एंटर हो गया है सेल में, तो उसको वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये प्रिवेंट करता है सेल को, एनिमल को। जब भी हम एल्गी की बात कर रहे हैं, हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, तो सेल को प्रिवेंट करता है बाय थ्रोइंग एक्स्ट्रा वाटर विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो हमारा सैप वाटर नहीं कर सकता, वो एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट नहीं कर सकता, बट क्या करता है? रेगुलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट एंटर कर रहे हैं थ्रू द टोनोप्लास्ट। नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है योर सैप वैक्यूल। Clear? Solute present in sap vacuole maintain a proper osmotic pressure of the cell for its turgidity and water absorption. तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ना osmotic balance, that is being done with the help of the sap. Getting my point? ये किसका question था? It's a good question. Yes, miss. Sayan, are you getting my point, बच्चा? Yes. Here the osmotic balance is maintained with the help of the sap. The solutes that are present in the vacuole,
जो यहाँ पर सॉल्यूट्स प्रेजेंट है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को भी मेंटेन कर रहे हैं कि अब ज्यादा वाटर एंटर नहीं कर सकता है, ज्यादा सॉल्यूट एंटर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर सैप मेंटेन कर रहा है. बट हियर इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इट्स द रोल ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टू कंट्रोल ऑस्मोरेगुलेशन बाय excreting out the extra water that enter the cell. ठीक है? Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछ